Bismillahirrahmanirrahim. Today our chapter is Thermal Properties of Matter. It is Unit 8, Physics Class 9. Conceptual Questions. These conceptual questions are related with KPK boards. Question 1 is ordinary electric fan increases the kinetic energy of the air molecules caused by the fan blades. Pushing them means the air temperature increases slightly rather than cool the air. Why use it? Temperature is the average kinetic energy of molecules. यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की बढ़ेगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसका मतलब तो ये है जब हम फैन चलाते हैं तो एयर जो है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है फ़ैन चलाने से तो फिर हम फ़ैन क्यों चलाते हैं? इसकी बेसिक वजह यह है कि जब हम फ़ैन चलाते हैं तो हमारी बॉडी से एवोपरेशन होती है और ये एवोपरेशन हीट को हमारी बॉडी से लेकर जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। वी फील कूल। सो इलेक्ट्रिक फैन डज नॉट प्रोड्यूस एनी कूलनेस, इट ओनली स्पीड अप्स द process of evaporation, and this evaporation takes heat from our body and our body feels cool. So answer is temperature is the average kinetic energy of molecules of the body. Fan actually add heat to a room. We know that when wind blows the process of evaporation increases. The water molecules leave our body surface. It takes heat energy with it. This has a cooling effect which our body feels. Question 2 is why are small gaps left behind the girders mounted in walls? छतों पे जो ऊपर गार्डर लगे होते हैं उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। What is the reason behind it? हमें पता है कि सॉलिड एक्सपेंड करते हैं जब उन्हें हीट मिलती है। गर्मियों में सॉलिड्स एक्सपेंड होंगे, सर्दियों में कंट्रैक्ट होंगे। ये गैप जो थोड़ा सा छोड़ा जाता है ये इसलिए होता है कि जब गार्डर गर्मियों में एक्सपेंड हो तो उसकी एक्सपेंशन के लिए जगह मौजूद हो और दीवारों को नुकसान ना पहुँचे। पहले हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ लेते हैं। As the temperature of solid is raised, the molecules vibrate through a large distance. The increase in amplitude of vibration of molecules causes an increase in average distance between them. Hence, solids expand on heating. ये तो थर्मल एक्सपेंशन की डिफिनीशन हुई। Gaps between the girders mounted in wall. Gaps are left between the girders mounted in wall to give room for expansion. Usually one side of the iron structure is fixed and the other end are allowed to expand in summer into the left out gap. If there is no gap left, girder will expand in summer and will exert pressure on the walls which can damage the walls and roof. The girder may also bend due to expansion. Question 3. Why you should not put a closed glass jar into a fire camp? What would happen if you toss an empty glass jar with the lid on tight into a fire? हमें फायर में कैंप फायर जो बाहर स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ कैंप लगाते हैं और फिर रात को आग जलाते हैं तो उसमें हमें गिलास जार नहीं फेंकना चाहिए जबकि उसका जो कवर है ऊपर उस पर जो कवर है वो टाइट हो। इसकी बेसिक रीज़न ये है जब हम गिलास जार को फायर में फेंकेंगे और उसका ऊपर कवर टाइट होगा तो उसको हीट मिलेगी
उसके अंदर जो एयर होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द जार पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है और जार जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है। आंसर, इट इज़ फिल्ड विद एयर। एज द फायर हीट्स द एयर इनसाइड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स increases, its temperature rises, volume inside the glass jar changes only slightly due to the heating. The pressure of the air inside the jar can increase dramatically, enough to cause the jar to explode, throwing glass pieces outward, and these pieces can hurt us. So, we should be careful and do not throw glass jar into a fire. Question 4. Explain why it is advisable to add water to an overheated automobile engine only slowly and only with the engine running. आपने देखा होगा कि अक्सर इंजन गर्म हो जाते हैं, फिर लोग सामने वाला जो बोनट होता है उसे खोलते हैं, कार्बोरेटर का कैप खोलते हैं और उसमें ठंडा पानी डालते हैं, लेकिन इंजन बंद नहीं करते। इसकी वजह यह है कि ये जो पानी है ये इंजन के चारों तरफ सर्कुलेट करता है। हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं और वो ठंडा पानी इंजन के चारों तरफ मूव करता है और इंजन आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। हमें ये पानी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर डालना चाहिए ताकि सडनली ये इंजन कूल ना हो और उसमें क्रैक्स ना आए, क्योंकि बॉडी जब ठंडी होती हैं तो वो कंट्रैक्ट होती हैं। आंसर, if we add water quickly to an overheated engine, water will come into contact with the hard metal part of the engine. Some area of the metal part will cool down very rapidly, while other part will not. Some part of the water will quickly run to steam and will rapidly expand, which can result a cracked engine block or radiator due to the emission of high temperature steam from the radiator. So water should be added slowly with the running engine. इंजन चलता रहना चाहिए. The water will mix with the hotter water already present in the system and then will circulate through the engine. So by this, gradually cooling in all parts will occur at the same rate. Question 5. Explain why burns caused by the steam at 100 centigrade on the skin are often more severe than burns caused by water at 100 centigrade. स्टीम भी 100 सेंटीग्रेड पे होता है। जब हम पानी को 100 सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो पानी बॉयल करने लगता है और फिर पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि अब पानी का टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा और वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम. स्टीम एंड वाटर बोथ आर एट 100 सेंटीग्रेड. लेकिन पानी जब बॉयल होता है और उससे स्टीम बनती है तो ये स्टीम अपने साथ इजाफी लेटेंट हीट लेकर जाता है. वो हीट जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है. इसका मतलब है कि स्टीम में लेटेंट हीट भी शामिल है. वो हीट जिसने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया है. दोनों का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड है, लेकिन स्टीम में हीट एनर्जी वाटर से ज़्यादा है. इसलिए अगर 100 सेंटीग्रेड पे वाटर हो और 100 सेंटीग्रेड पे स्टीम हो तो 100 सेंटीग्रेड पे स्टीम हमारे बॉडी को, हमारी स्किन को ज़्यादा सीवियर बर्न कर सकती है, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. आंसर: heat is required to convert a solid substance into liquid and liquid into gas. On heating water, its temperature rises till it boils at 100 centigrade.
During boiling, the temperature remains constant at 100 centigrade, although heat is being constantly supplied to the water. This heat supplied is consumed in separating the molecules and not the increasing of the kinetic energy of the molecules. Potential energy is greatly increased and molecules leave the liquid and change into steam. Steam has latent heat of vaporization. In other words, steam has more heat energy than water at 100 centigrade. This is why burn from steam is much worse than from boiling water at 100 centigrade. Question 6. Explain why cities like Karachi situated by the ocean tends to have less extreme temperature than inland cities at the same latitude. कराची और वो तमाम इलाके जो साहिल समंदर के करीब होते हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता और उनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। वाटर की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है, इसलिए वाटर का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब दिन को सूरज चमकता है तो ये सन समंदर और लैंड दोनों को इक्वली हीट प्रोवाइड करता है, लेकिन क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है इसलिए उसका टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। लैंड जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कम है इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओशन के ऊपर जो ब्रीज होगी, जो एयर होगी वो कूल होगी और लैंड पे जो एयर होगी वो हॉट होगी। कूल एयर जो है वो हेवी होती है और वार्म एयर जो है वो हल्की होती है। अब क्या होगा कि ये हेवी एयर जो है ये लाइट एयर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी और समंदर से लैंड की तरफ एयर चलती रहेगी। इस वजह से सारा दिन समंदरी हवाएं जो है वो चलती रहती हैं और टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। रात को इसके बरअक्स होता है। जब रात होती है सूरज डूब जाता है। क्योंकि समंदर में पानी है, पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है इसलिए उसका टेम्परेचर जल्दी नीचे नहीं जाएगा और लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब लैंड क्योंकि जल्दी ठंडा हो गया है, यहाँ की एयर जो है वो भी ठंडी हो जाएगी, ये एयर भारी हो जाएगी। सी क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं होता, वहाँ पे जो एयर होगी वो भी हॉट होगी। इस वजह से अब रात को लैंड से जहाँ पे हैवी एयर है वो समंदर की तरफ मूव करेगी, यानी दिन को समंदर से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं और रात को लैंड से समंदर की तरफ हवाएं चलती हैं। इस तरीके से 24 घंटे हवाएं चलती रहती हैं और कराची का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, मोतदिल रहता है, मुतवाज़िन रहता है। अब इसका आंसर देख लें। इफेक्ट ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नियर कोस्टल एरिया लाइक कराची ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स इक्वली ऑन लैंड एंड सी। The specific heat of water is higher than land, so land heat up more quickly than sea. The hot air over the land rises and the cold air from the sea blows to replace it. Thus, there is a sea breeze during the day. At night, the reverse happens. The land cools more quickly than the sea. The hot air over the sea rises and the cold air from the land blows to replace it. This movement of air is called the land breeze. Due to the high specific heat of water, the climate of the coastal area is moderate throughout the year. Question 7. An iron rim which is fixed around a wooden wheel is heated before its fixture. Explain why. तांगा जो कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा था उसके वुडन व्हील होते थे। उस वुडन व्हील पे रबर चढ़ाया जाता था। इस रबर को एक रिंग में
फिक्स किया जाता था। इस रिंग को किस तरीके से इस वुडन व्हील पे चढ़ाते? ये जो रिंग है इसका साइज़ थोड़ा सा वुडन व्हील से छोटा रखा जाता था। फिर इस आयरन रिंग को हीट किया जाता। हीट करने से ये एक्सपेंड होता, इसका साइज़ वुडन व्हील से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। इसको वुडन व्हील के चारों तरफ रख देते और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते। ठंडा पानी डालने से ये जो रिंग है ये वुड पे फिक्स हो जाती, यानी कंट्रैक्शन की वजह से ये वुड को पकड़ लेती और फिर इसके ऊपर रबर चढ़ाया जाता था। तो ये एक मेथड था जिसमें एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को यूज़ किया जाता। आंसर, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। एज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इज रेज्ड, द मॉलिक्यूल वाइब्रेट थ्रू larger distance. The increase in amplitude of vibration of molecules causes increase in the average distance between them and solid expand. Fixing of iron rim. An iron rim can be tightly fixed into the wooden wheel. At room temperature, the diameter of the iron rim is slightly less than the diameter of the wooden wheel. The rim expands on heating and can be placed around the wooden wheel. When the rim comes to room temperature, it contracts and produces tight fix. Question 8. Why is ice at 0 centigrade a better coolant of soft drinks than water at 0 centigrade? अगर हमें ड्रिंक को ठंडा करना है तो हम ठंडा पानी 0 सेंटीग्रेड के बजाय अगर बर्फ़ जो 0 सेंटीग्रेड पे है उसको डालें, ड्रिंक ज़्यादा ठंडा होगा। जब हम बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ के पिघलने के लिए हीट चाहिए, वो हीट वो ड्रिंक से लेगी। इस वजह से ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा क्योंकि बर्फ़ उसका तमाम हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए ड्रिंक्स में 0 सेंटीग्रेड पे अगर हम बर्फ़ डालें तो वो ड्रिंक को ज़्यादा ठंडा करेगी। आंसर, ऑन हीटिंग आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर, but temperature remains constant at 0 centigrade as long as there remains some ice. This means that ice takes nearly as much energy to change ice into water as it goes to heat the water right up to boiling point. The quick way to cool a drink by just adding a couple of ice cubes and stir. As the ice melts, it absorbs so much heat from the drink that the temperature falls to near freezing. Question 9. Why we feel cool after respiration? पसीने के बाद हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? इसकी एक्सप्लेनेशन काइनेटिक थ्योरी इस तरह करती है कि जब हमारी बॉडी हीट अप होती है तो वो मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो हमारी बॉडी से एस्केप करती हैं और टेम्परेचर असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं। जब ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी से एवोपोरेट हो जाते हैं तो कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हमारी बॉडी पे रह जाते हैं और इस वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। या इसको इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी वो हमारी बॉडी से लेता है। इसलिए हमारी बॉडी जब अपनी हीट एनर्जी लिक्विड्स को या वाटर वेपर्स को दे देती है तो वो तो एस्केप हो जाते हैं लेकिन हमारी बॉडी ठंडक महसूस करती है। आंसर, अ लिक्विड नीड्स लेटेंट हीट फॉर इट्स एवोपोरेशन। लेटेंट हीट वो हीट जो लिक्विड को एवोपोरेशन में कन्वर्ट करती है और लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसलिए उसको लेटेंट हीट या हिडन हीट कहते हैं क्योंकि ये थर्मामीटर पे शो नहीं होता। इफ़ द लिक्विड इज़ नॉट बीइंग हीटेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, द हीट रिक्वायर्ड फॉर एवोपोरेशन ऑफ द लिक्विड मस्ट कम फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ, thus कूलिंग द रिमेनिंग लिक्विड। अगर लिक्विड को आप इजाफी हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो एवोपोरेशन के लिए अपने आप से ही हीट लेगी
और रिमेनिंग लिक्विड जो रह जाएगा वो ठंडा हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी explanation. During evaporation, more energetic molecules escape from the liquid surface. Molecules that remain in the liquid have lower kinetic energy. A liquid with molecules of less kinetic energy has a lower temperature. Thus, evaporation produces cooling. Example: spirit spilled on our palm quickly evaporates. As a result, our palms feel cool after perspiration. When liquid evaporates, its molecules convert from the liquid state to the vapor state and escape from the surface. When liquid evaporates, its molecules convert from the liquid state to the vapor state and escape from the surface. In order for the liquid molecule to leave the liquid surface and escape as vapor, it must take heat energy with it. Since the molecule is taking heat energy with it, this has cooling effect on the surface left behind. That is the reason we feel cool after respiration.